Remember, it's a high decibel poll battle, which of course is taking place. Today, polling is on in 88 seats across 13 states of the country. About 16 crore voters are exercising their franchise by casting their mandate. The electorate is sealing the fate of 1,206 candidates that are contesting for a berth in the Lok Sabha in this phase. Voters from 5 constituencies each in Assam and Bihar and 3 in Chhattisgarh, 14 in Karnataka, all 20 in Kerala, 6 in Madhya Pradesh, 8 in Maharashtra, 1 each in Manipur, Tripura and Jammu and Kashmir, 13 in Rajasthan, 8 in Uttar Pradesh and 3 in West Bengal are queuing outside polling centres. Well, we of course have our eyes on several of the key VIP battles. In Kerala's Wayanad, a three-pronged fight is taking place between Congress's Rahul Gandhi, BJP's K. Surendran and CPI's Annie Raja. Thiruvananthapuram is another high-profile seat in Kerala. It's seeing a triangular contest between the BJP's Rajiv Chandrasekhar, the CPI's P. Ravindran and the Congress's Shashi Tharoor. But in neighbouring Karnataka, high-profile candidates such as Tejasvi Surya and DK Suresh are looking to retain their respective seats, Bengaluru South and Bengaluru Rural. Meanwhile, in Mandya, H.D. Kumaraswamy is looking to bring the JDS back to power in that seat. In Maharashtra, we're keeping our eyes on the showdown between the Mahayuti and the Maharashtra Vikas Aghadi, especially in Amravati and Nanded. Remember, out of these 88 constituencies that are going to polls today, in 2019, the BJP had bagged 50 seats and the Congress had won 19. Well, if we talk about more high-profile seats in UP, in Mathura, actor and sitting MP Hema Malini has, of course, is once again in the fray today. Arun Govil, well-known actor, is meanwhile hoping for his maiden win in Meerut. In Purnia and Bihar, Pappu Yadav, remember, declared his candidature as an independent candidate. He is, of course, in the fray, making that fight into a three-way contest as well. And, of course, also there are seats in Northeast polling too as well. But let's go across to Vikas Srivastava first, who's joining us from Nanded in Maharashtra. Vikas, interesting fight there in Nanded constituency. It's, of course, known as the stronghold of the Chawans. Has Ashok Chavan coming to the BJP helped the party at all, even though, of course, he's not contesting himself? And also, as far as the issues on ground are concerned, what are voters telling you? What's on their mind? Well, right now I'm at a polling booth and I'm gauging the political temperature out here, and I'm trying to understand on what issues the voters of Nanded are going to cast their vote. Somehow the scorching heat is playing a role of a villain, because right from 1 o'clock I could see very less voters showing up on the polling booth. राइट नाउ वी हैव सम वोटर्स, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों के आधार पर वो अब की बार वोट करने पहुंचे हैं. आप वोट करने हैं दादा, किस मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे अब की बार नांदेड़ में? किसकी वो नहीं बोलते यार, मुझे दिखाई दिमाग. सभी लोग कैमरा सेवी नहीं होते, कुछ लोग कैमरे से बचना चाहते हैं. आप यंगस्टर हैं, आप बात करिए, क्या किन मुद्दों के आधार पे आप अब की बार वोट करने जा रहे हैं? नांदेड़ का नवयुवक किस मुद्दों के आधार पे वोट? मेरा तो फर्स्ट टाइम ही वोट है. फर्स्ट टाइम वोटर है. फर्स्ट टाइम वोटर है कि क्या मुद्दे क्या है आपके लिए नांदेड़ में? आपको लगता है विकास की बयार बही है, नहीं बही है? मुद्दे क्या है? होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए. रोडों का काम बंद है, वो भी चालू हो जाना चाहिए बस. एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, नांदेड़ में थोड़ा हिंदी अंग्रेज़ी की दिक्कत है, लिहाजा लोग कैमरे से बचते हैं. हालांकि मैंने सवेरे से यहाँ पर तकरीबन 50-55 मतदाताओं से बात की, उनका मूड टटोलने की कोशिश की, और सबका यही कहना था कि विकास के मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं. इसके अलावा हिंदुत्व भी एक मुद्दा था. नांदेड़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कुछ लोगों का ये कहना था कि वो ठीक नहीं है. अब मैं आता हूँ पॉलिटिकल इक्वेशन पर. नांदेड़ में ये बैस्टियन माना जाता था कांग्रेस का 2019 तक. 2014 में भी जब मोदी की पहली लहर बताई जा रही थी, उस समय भी अशोक चव्हाण ने नांदेड़ की सीट को रिटेन कर लिया था, जीत लिए थे, और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है नांदेड़. लेकिन अब ऐसा है कि 2019 में प्रताप चिखलीकर, जो कि बीजेपी द्वारा कॉन्टेस्ट कराया गया, यहाँ से फील्ड कराया गया, और उन्होंने अशोक चव्हाण को हराया, जिसके बाद ये जो ओपिनियन था लोगों का कि ये कांग्रेस का गढ़ है, ये ओपिनियन ख़त्म हो गया, ये इंप्रेशन ख़त्म हो गया. और उसके बाद अब इस बार चुनावी इक्वेशन बिल्कुल अलग हो गए हैं. सिनारियो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, क्योंकि अशोक चव्हाण खुद अब बीजेपी में आ चुके हैं. हालांकि वो लड़ नहीं रहे, वो राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन
उनकी उनकी गैर मौजूदगी ने इस लड़ाई को एक किस्म से एक तरफा बना दिया है, ऐसा लोग मानते हैं। नांदेड़ में 9 विधानसभा सीटें हैं और कुछ विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम वोटर एक मुश्त वोट करते हैं, एन ब्लॉक वोट इनका अगर किसी एक कैंडिडेट को होता है तो ये बड़ा फेरबदल कर सकता है। लेकिन ये सब हमें 4 जून को पता चलेगा कि नांदेड़ की जनता ने आखिरकार दिल में क्या रखा था, किसे वोट किया। लेकिन इस समय जो सिनारियो मुझे पोलिंग बूथ से देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो मैं उम्मीद करके चल रहा था कि जो जितने वोटर्स मुझे दिखेंगे, सवेरे तो दिखे थे 7 से 10 के बीच में, और उसके बाद 1 बजे तक भी मुझे वोटर्स नज़र आ रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री हो गया और वोटर्स की संख्या काफ़ी कम हो गई। हालांकि 4 बजे के बाद फिर से अब वोटर आने शुरू होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वोटर्स जो हैं उनकी संख्या बनिस्बत सवेरे के बहुत कम हो चुकी है। जी बने रहिए आप हमारे संग। विकास, मैं इस वक्त कवर्धा ले चलता हूँ दर्शकों को। दीपक विश्वकर्मा is joining us live from Chhattisgarh. What are the voters of Kavarda telling you, Deepak? What are the main issues that are on their minds today when they are showing up to press that button on the EVM? देखिए, 2 चीज़ें हैं कवर्धा को लेकर। 2 चीज़ों की चर्चा खास होती है। कवर्धा जो विधानसभा है, राजनांदगांव लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें हैं। मौजूदा दौर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 5 सीटें कांग्रेस के पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 5 साल, आज से 100 दिन पहले तक जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहने के बाद अब यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वो दुर्ग है, लेकिन वो यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जिन 3 सीटों पर चुनाव है, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, ये 3 सीटों में जो हाई प्रोफाइल सीट है वो राजनांदगांव की सीट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं से जो मौजूदा सरकार है उसके गृह मंत्री भी हैं, 15 सालों सत्ता में राज करने वाले डॉक्टर रमन सिंह भी यहीं से ही हैं, उनके बेटे सांसद रहे वो भी यही है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों में जिन 2 लोगों को दोबारा मौका दिया है, उसमें एक राजनांदगांव की सीट है और दूसरी सीट लोकसभा की है। कुछ लोगों से समझ लेता हूं कि इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था 4 महीने पहले, तो इस कवर्धा में अलग मुद्दे थे। आज क्या मुद्दे हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं, इन्हीं से समझ लेता हूं, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा कि आखिर उस समय मुद्दे क्या थे। जो विधानसभा के मुद्दे थे वही मुद्दे इस बार लोकसभा में भी हैं, अलग हैं? वही मुद्दे हैं इस बार भी। मतलब इस बार भी राम की चर्चा है, मंदिर की चर्चा है, भगवा की चर्चा है। जी वही चर्चा है। ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी? लोग कह रहे हैं सड़क हो जाए, अस्पताल हो जाए, स्कूल हो जाए, वो नहीं चाहिए क्या? वो भी सब जो भी जरूरी है, पर ये भी चीज़ भी जरूरी था। मंदिर भी मुद्दा मेन है, जरूरी है। देखिए, मोदी जी के आज की जो दौर है उसमें भी ये चीज़ की चर्चा है। किस मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला? क्योंकि आपकी उम्र देख के तो समझ आ रहा है आपने तमाम नेताओं को दिल्ली भेजा और तमाम नेताओं को विधानसभा भेजा। क्या सोचा जब वोट डाला? क्या बोलो तो कुछ नहीं। आपकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ बता दिया। आप कुछ कह रहे हैं? हम सनाती हैं, हमको आगे सनातन चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हमने वोट डाला है। सनातन के अलावा भी तो बहुत कुछ है, शिक्षा है। शिक्षा इंसान ले सकता है, मगर जो आगे के लिए है रास्ता सही रहेगा जब आगे इंसान सही चल सकेगा। हमारे मार्गदर्शन देने वाले सही होना चाहिए। कौन है मार्गदर्शन? मोदी जी। बता ही दो जी। पाजी आप भी आई जाओ, आप बता क्या है जो ये कह रही हैं, आप इत्तेफाक रखती हैं? जी, सनातन की चर्चा जी, है। सही बोल रही जी। सही बोल रही है सनातन। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करता हूँ और एक बात समझता हूँ। सेल्फी सेशन चल रहा है और आदर्श मतदान केंद्र बताया गया, आप यहीं रहिएगा, सेल्फी दोबारा ले लेना। ये बताओ क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? इस बार वोट का मुद्दा यही है सर कि इस बार काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने के लिए मिला, और जो कि जितने भी शिक्षक एजुकेशन जो युवा हैं उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा, ऐसा विचार है। और बाकी जो चीज़ था राम मंदिर वाला, ये सब चीज़ का। ये कवर्धा में राम मंदिर, आपकी बिटिया को देख के बहुत अच्छा लगा, ये भी फिंगर दिखा रही है, इन्होंने तो नीचे कर ली, देख लो ये गलत है। नहीं। ये मुझे एक बात बताओ, कवर्धा का जब जिक्र होता है तो मंदिर की चर्चा होगी, भगवा की चर्चा होगी, अकबर की चर्चा होगी, बाबर की चर्चा, ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट दिखता है कवर्धा पे, इसलिए इस चीज़ का देखा गया, इसलिए इस चीज़ का चर्चा होता है हमेशा। मतलब ये बड़ा मुद्दा है। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं अपने साहब की बात से? 100%। तो पक्का हाँ। मतलब कवर्धा में विकास के अलावा भगवा भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए। वो तो चाहिए ही, विकास चाहिए ही, पर ये भी चाहिए, ये होना चाहिए, ये जरूरी है।
हम 4 महीने पहले कवर्धा आए थे, तब भी इस कवर्धा में यही चर्चा थी, क्योंकि यहाँ झंडा विवाद हुआ, 1 महीने कवर्धा बंद रहा। कवर्धा को, अपने दर्शकों को बता दूं, कवर्धा को भोरम देव की नगरी कहा जाता है। यहाँ एक शिवलिंग है जो विश्व विख्यात है, कई ज्योतिर्लिंगों में उसकी चर्चा है। 1 महीने वो मंदिर बंद रहा और उसके बाद चर्चा ये होने लग गई कि अब आगे क्या होगा। कवर्धा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोच के आपने वोट डाला? कवर्धा में एक तो रेलवे लाइन का विस्तार होना जरूरी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से आवश्यकता है उसकी। और जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जैसे टूरिस्ट इंटरेस्ट के तौर पर गार्डन वगैरह होने चाहिए और तालाब होने चाहिए, जूह चौपाटी होने चाहिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। आपका शुभ नाम? खुशहाल टाटिया जैन। जैन साहब का सुझाव बहुत अच्छा है। एक बात सवाल और है, कुछ लोगों से बात कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि मंदिर होना चाहिए, सनातन को बचाना क्या जरूरी? नहीं, देखिए क्या है, हम जहाँ हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ तो गुणगान तो करना ही है। मतलब काम हो जाए, वो जिस वतन में काम होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, मतलब नॉर्मली कॉमन रूप से प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति है और उसके लिए ये जरूरी है कि उसका काम होना चाहिए। काम को प्राथमिकता दे, बाकी सब चलता रहेगा। ये देखिए बहुत बड़ी बात जी। तो ये थे कुछ विषय वहां जो हम सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ से बन रही है आप हमारे संग दीपक, कुछ और हमारे जो सहयोगी है उनका भी हम रुख करना चाह रहे हैं इस वक्त। कोटा राजस्थान से विष्णु शर्मा भी जुड़ गए हैं। Vishnu, if we talk about Kota, Rajasthan, what are the main issues that voters there are telling you? What is swaying the voter in Kota this time around? Kota, of course, is seeing a keenly watched contest between Om Birla of the BJP, who's the Lok Sabha Speaker, and Prahlad Gunjal of the Congress, who switched over from the BJP to the Congress just before the elections. देखिए, राजस्थान की कोटा सीट को बहुत ही हॉट सीट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो काफी चर्चाओं में रहते हैं। राजनीति में उनका बड़ा स्तर है। प्रहलाद गुंजल हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए और चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनके सामने ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2 बार यहाँ से सांसद हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो कोटा बूंदी जो लोकसभा सीट है उसमें 8 विधानसभाएं आती हैं और 8 में से 4 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है। तो एक कांटे की चक्कर है। दोनों ही प्रत्याशियों से जब बातचीत की गई तो दोनों ही जीत के लिए आश्वस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के चेहरे पे ये चिंता थी कि आखिर इस चुनाव का क्या होगा। 55% के आसपास जो वोटिंग है वो कोटा में हो चुकी है। कहीं ना कहीं और जो बचा हुआ वक्त है उसमें भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 से 15% वोटिंग और बढ़ सकती है। अब जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पर जो भीड़ है वो कम होने लग गई है। सुबह का जब टाइम था, जब भीड़ थी यहाँ पर काफी, लेकिन अब पोलिंग बूथ पर 1-2 लोग ही नजर आ रहे हैं। और जो बेसिक यहाँ का जो मुद्दा है, शिक्षा नगरी शहर को कहा जाता है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ एक सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो लगातार जो बच्चों की सुसाइडों की खबरें आती हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ पर एयरपोर्ट, एम्स अस्पताल, ये जो 2-3 चीजें हैं इनको लेकर ही कहीं ना कहीं चुनाव केंद्रित होता है। और उन्हीं चीजों की चर्चा सुबह से लोग कर रहे हैं कि विकास का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और जो एक एयरपोर्ट की बात थी वो लंबे समय से पेंडिंग है कोटा में, इसकी भी चर्चा लोग खूब करते हैं। और साथ ही साथ जो कोचिंग सिटी है कोटा, लोगों से बातचीत करें हम। ये पोलिंग आवर्स का वक्त है तो हम चाहेंगे जितने ज्यादा लोगों से हम बातचीत करें उतना बेहतर होगा। अजीत मेंडोला का भी मैं इस वक्त रुख करना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे संग जुड़ गए हैं। अजीत मेंडोला, बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है देश भर में। 88 seats going to the hustings today, Ajit Mendola. But let's start out by talking about Rajasthan and then we'll move to other states as well. Rajasthan, of course, seeing 13 seats out of 25 vote today. 12 have already voted in the first phase. It's an interesting election because BJP has always done very well in Rajasthan, winning 25 out of 25 seats, both in 2014 and 2019. Will that repeat this time around? Yes or no, Ajit Mendola? And 2, which do you believe are the determining factors that are swaying the mood of the voters? Voters के मन में राजस्थान में क्या चल रहा है? उदय, देखो, पहले चरण की जब वोटिंग हुई थी तो बीजेपी में बड़ी चिंता की लहर थी और बड़ी चिंतित थी। पूरा बीजेपी ने अपना जो कैंपेन है उसको बदला है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा एजेंडा ही बदल गया है।
400 पार के नारे की बात अब नहीं होती है, मोदी की गारंटी की बात अब नहीं हो रही है, अब मुद्दों पे बात हो रही है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरीके से निशाने पे ले दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और घोषणा पत्र से, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उससे निकाल के कोशिश करी बीजेपी ने इस बार। अब जैसे खबरें मेरे पास भी आई कि कहीं ना कहीं संघ ने अब शायद संघ जो पहले चरण में थोड़ा सा साइड था, उसने दिलचस्पी नहीं ली, शायद अब संघ ने दिलचस्पी ली है, और उसका नतीजा है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अपील करते हैं बराबर कि आप वोटिंग करिए, हम लोग अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप भी अपील कर रहे हैं, न्यूज एक्स भी अपील कर रहा है, इंडिया न्यूज अपील कर रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिए। और कहीं ना कहीं वोटिंग जो कम हुई थी पिछली बार की, वो मुझे लगता है वो भरपाई सेकेंड वाले में होने जा रही है। अभी तक मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की अधिकांश सीटों में 50, 55, 60 तक की रिपोर्ट आने लगी है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, जो ऐसी सीटें आदिवासी इलाके की, वहां से 60 की क्रॉस करने की बात आने लगी है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो आंकड़ा है वो 2019 से अच्छा हो सकता है। 2019 में 66-67% था, वो मेरे को लगता है कहीं 70 के आसपास तक राजस्थान में अगर वोटिंग होती है तो ये अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट देने लोग निकले। जहां तक वहां पर कैंडिडेट की बात है, ये जो बड़ी हॉट सीट है उसमें एक सीट की चर्चा तो ये आपने कोटा की कर ही ली है। वहां ये क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जालोर सिरोही से लड़ रहे हैं। दूसरा जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए जूझ रही हैं झालावाड़ माना में। तो अब कहीं ना कहीं ये अब जो सेकंड राउंड का ये जो चल रहा है वोटिंग दूसरे चरण की, इसमें सारे दिग्गज जो फंसे हैं, जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन अब बीजेपी शायद इस बात से थोड़ा सा, आज जब शाम को वोटिंग का, हालांकि असली तो कल तक पता चलेगा कि कहां तक वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को अब थोड़ी सी राहत होगी पिछले पहले चरण के मुकाबले अब दूसरे चरण की। जी बिल्कुल। और अगर बाकी कुछ सीटों की बात करें, चाहे वो दक्षिण में हो या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, तो वहाँ मेन फैक्टर्स क्या है जीत पेंडोला? और अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज के बारे में, तो पहले चरण में हमने देखा था मतदान का जो प्रतिशत था वो घटा था। इसकी वजह क्या है और क्या ये ट्रेंड आज रिवर्स होगा? इनफैक्ट छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है, और दीपक विश्वकर्मा के पास मैं वापस अभी लौटूंगा कुछ ही क्षणों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य था जहां हमने देखा था कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ी थी 2019 के मुकाबले। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, छत्तीसगढ़ ये हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में क्या हुआ था होता है कि हिंदी बेल्ट में केवल छत्तीसगढ़ को अगर आप छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में घटी थी, राजस्थान घटी, उत्तर प्रदेश चिंता बढ़ाई थी, उत्तराखंड ने बढ़ाई थी। तो हिंदी बेल्ट, देखो बीजेपी का जो सबसे बड़ा मजबूत आधार है वो हिंदी बेल्ट वाले राज्य में। अगर हिंदी बेल्ट के राज्यों में कम वोटिंग होने से कुछ इस तरह की खबरें आई कि जो शुरू में 400 पार का नारा दिया गया था, वो 400 पार के नारे से विपक्ष ये शायद इस चीज को चलाने में कामयाब हो गया कि ये संविधान को खत्म कर देगा, अम्बेडकर का संविधान जो बनाया है वो खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अंदर खाने बात चली, और वो जिसे कहते हैं कि उसमें जो रिजर्व वाली कास्ट थी वो थी, और उन्होंने कहते हैं कुछ जगह पर शायद वो वोटिंग नेगेटिव है बीजेपी के लिए, तो वो बीजेपी थोड़ा सा उससे चिंतित थी। जी चिंतित है। दीपक विश्वकर्मा, क्या उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ ने ट्रेंड ब्रेक किया था फर्स्ट फेज में, वैसे ही आज का मतदान रहेगा? जी बिल्कुल, मतदान बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है और जिस चीज़ों की चर्चा की जा रही है, उनसे एक बात साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के नतीजे आज से 4 महीने पहले आए थे वो, और जो 2019 का जिक्र कर रहे थे वो, एक तस्वीर है, बहुत सुंदर तस्वीर है। क्योंकि जिस लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करते हैं वो ये दादी माँ बता रही हैं। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? इधर बताइए ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप वोट डालने आई हैं, क्या ऐसा सोचा है कि ये काम नहीं हुआ है, ये काम हो जाना चाहिए? मोदी सरकार को आना चाहिए। आपने तो एक ही बार में मोहर लगा दी। अच्छा कोई खास वजह बताइए अगर आप ऐसा कह रही हैं। धर्म कर्म के काम कर रहे हैं मोदी सरकार, पूरा लोग नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे कोई नहीं किए हैं। 500 साल में मतलब राम जन्मभूमि का हुआ, और एकदम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पसंद है। बाकी सब काम नहीं चाहिए? सब काम चाहिए,
लेकिन सबसे बढ़िया धार्मिक कार्य हो रहा है। 80 के आसपास इनकी उम्र है, क्योंकि इनके हाथों की जो झुर्रियाँ हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और एक बात साफ हो गई है, कवर्धा का मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है। आज से 4 महीने पहले जब मैं कवर्धा आया था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब भी यहाँ राम की चर्चा थी, यहाँ मंदिर की चर्चा थी, यहाँ भैरम देव की चर्चा थी, यहाँ झंडे की चर्चा थी और यहाँ भगवा की चर्चा थी। और आज 4 महीने बाद, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ खास है, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो जब बात करते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवा की बात करते हैं, भगवामय की बात करते हैं। और उन सब के बीच आज ये दादी माँ अगर 80 साल की ये कह रही हैं कि मोदी हो, सनातन हो, भगवा हो, मंदिर हो, तो एक बात साफ हो गई है, इस देश में बाकी चीज़ें फिलहाल तो गौण नजर आ रही है, क्योंकि सरकारें जिस तरीके से नारा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नारा ये मतदाता के लिए, मगर अहम ये भी है कि मतदाता जो हैं, जो महिला मतदाता, आप उनसे बातचीत जो कर रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं, उनकी उम्र काफ़ी है, वो व्हीलचेयर में आई हैं, मगर आई हैं, अपना मत का अधिकार डालने के लिए वह आए हैं। और यह प्रेरणा की बात है बाकी लोगों के लिए भी। 2 घंटे बाकी, हम आग्रह करेंगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, whoever is part of these constituencies in these 88 seats, you must go and cast your vote. You still have some time. It is your duty and responsibility. But more voters are speaking out. More voters are reacting. More voters are speaking about the issues that concern them, that are on their minds today. Let's play out what India's voters have to say today. For today, I'm voting for the development at the grassroots level of India. First of all, I'm also an active foreign policy follower, so I'm voting for India's strong foreign policy today. And I'm voting for the voice of youth and development in technology. I'm a semiconductor enthusiast. I work in the field of semiconductors, so I'm looking for a good semiconductor industry developed in India in this decade. Yeah. What issues are you voting for today? No, for development of the country, development of this region, people are working, so we need to encourage them. Thank you. What issues have you voted for today? Sorry, what is? What issues have you voted for today? See, the issues will be is more on one is job opportunities, and there are a lot of bank scams happened in South Bangalore. I think many people have lost money because of that. So, and also of course the development, the overall Bangalore development in terms of the infrastructure, upgradation of the hospitals, health sector, education, right, and the public transport. I think these are the main things, issues that that needs to be fixed. What issues are you voting for today? It's not about issues, it's about the rights. So every citizen has these rights. Today is the day and they should vote for their rights. But any issues specifically that you want fixed? No issues as such. I think for this constituency particularly, I think everything is going good in the south. Tejasvi Surya is doing really good and he's our MP for the south, and I don't feel any issues as such. It's going good. Because of the development, that's the only reason. Not for the guarantees. Thank you. इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे आप? विकास के मुद्दों पर जी। क्या लगता है पीछे आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। क्या मुद्दे हैं इस बार जो है उसको लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं? विकास पे देश के अस्तित्व को लेकर के हम ये समझ रहे हैं कि मोदी सरकार रहेगी तो ही देश की अस्तित्व बची रहेगी, अन्यथा हमारे विकास तो बाद की हम बात समझते हैं, है ना। विकास की बातें हैं लेकिन ये अस्तित्व की बातें भी है। सुबह सुबह मतदान करने के लिए आ गए हैं। पिछली बार बहुत कम लोग जो है आए थे, इस बार जो सुबह मिला हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कई और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है स्थानीय मुद्दा या क्या मुद्दा है इस बार का? देश के लिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। पूरे देश के लिए मोदी सरकार बेहतर कर रहे हैं, इसके लिए उसको समर्पित है हम लोग का। क्या मुद्दे थे जो इस बार अधूरे रह गए और क्या मुद्दों को लेकर? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप युवा हैं, इस बार लगता है सर विकास भी चाहिए और सर साथ में रोजगार भी चाहिए सर। जी सर।
क्या था जो इस बार जो है आप लोग को लगता है कि कुछ मुद्दे जो रह गए इस बार, क्या लगता है हम विकास के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, जो भी हैं हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट डालते हैं और भविष्य के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग आज किस मुद्दों को लेकर? जो देश का अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, बच्चों के लिए अच्छा सोचेगा, विद्यार्थी के लिए भटक रहा है पढ़ लिख करके, कुछ उसका के लिए अच्छे के लिए बना। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। पिछले सालों के विकास को देखे तो कुछ हुआ है? देवजी पटेल ने कहा नहीं हुआ। अपनी बार वैभव गहलोत को कांग्रेस से उतारा गया, वो चाहता है पिछले कई दिनों से जनसंपर्क साध रहे हैं, क्या विकास करेंगे? रहना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पर यूथ भी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं यूथ एक बड़ा जो है नंबर होता है, यूथ को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जाती है। जो वोटर्स है वो जनसंपर्क साधते हैं यूथ से। आप किस तरीके से आज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे कुछ देर में वोट कास्ट करने पर? लुबाराम जी। क्या जो है पिछली बार से 3 बार के सांसद रहे देवजी पटेल, और एक बार उनका टिकट काट के लुम्बाराम जी को मौका दिया गया है। क्या काम किया था देवजी पटेल ने पिछले 3 बार के सांसद? नहीं किया। और वैभव गहलोत जो जनसंपर्क साध रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम पीढ़ी से पीढ़ी हम बीजेपी को देते आ रहे हैं, हम बीजेपी को ही देंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपसे जानना चाहेंगे भैया किस तरीके से देखते हैं जालोर सिरोही के विकास को, किन मुद्दों को लेकर आज अपना वोट कास्ट करेंगे? हमारा वोट लुम्बाराम जी को जाएगा, देश हित में जाएगा, मोदी जी को जाएगा। देश हित में जाएगा तो यहाँ पे मतलब लुम्बाराम जी को या फिर मोदी जी को? लुम्बाराम जी मोदी जी एक ही है हमारे। नहीं, लोकल कैंडिडेट है या मोदी लहर? लोकल है, लुम्बाराम जी को जाएगा। जी बिल्कुल, बाबू जी आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं, किन विकास के मुद्दों को लेकर आज वोट देंगे अपना? मैं तो देश हित में करना है वोटिंग, एक ही मकसद। और विकास का मुद्दा क्या रहेगा, किस तरीके से विकास देखते हैं जालोर सिरोही? आप देश सुधरेगा तो विकास अपने आप सुधर जाएगा। I'm standing by at the Vidya Bharati Institute in Bangalore South, which is one of the crucial constituencies and a BJP bastion. We're expecting Tejasvi Surya to make his way here shortly. But before that, we've spoken to a lot of people who've come out this morning to vote. Listen in. Choose if you voted for today. Issues, not major, nothing as such. I mean, we are happy with the candidate to whom I have voted. I'm in fact very much influenced with all the podcasts being updated with. I'm happy about it, and hoping to have more of improvements, and I am sure things will be going in the right way. Thank you. Thank you. What issues have you voted for today? I have voted for the development of my country. So I have seen a lot of development, and then based on that my vote is for my country. Thank you. Thank you. I just want to understand what issues have you voted for today? The issue is we want a good, stable government at the center. So you have decided for the person whom you like. That's all. Thank you. It's for the development of the country and the stability of the financial systems within India. So those are the primary reasons that I voted. Can I understand from you as well? What issues have you voted for? I agree with what my dad said. Most likely financial issues of the country and development in general. For every issue. For in a total scenario, in a whole scenario, overall, taking the consideration, we have voted. Prosperity of the country, the stability of the country, and the security. Women and the people. Yeah. Those Ma'am, are the things. What issues are you voting for? Pardon? What issues are you voting for? Voting for is it? It is for the good of the total good of the country, security of the country, security of people, and the development. We are voting for the development of the country. जरूरी है वोट डालना। आपने वोट अपना कास्ट किया है, तो और क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में? चुनावों में मुद्दे हर वोटर पे डिपेंड करता है कि वो किस मुद्दे को किस तरीके से लेता है। जैसे हम लोग हैं जो बड़े अवेयर हैं लोग मुद्दों को लेके, जो मुद्दों पे सीरियसली सोचते हैं वो नेशन वाइड मुद्दों को लेते हैं। लेकिन एक आम नागरिक, ये पार्लियामेंट इलेक्शन, हाँ, लेकिन जो आम नागरिक है वो स्टेट लेवल के मुद्दों को लेके सोचते हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो हमें नेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए और उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करें जो कि एक डिज़र्विंग हो और जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और उसकी जो हमारा डिफेंस है
उसको स्ट्रॉन्ग करने का, जिसके मन में जज्बा हो और सेल्फलेस होके जो काम करना चाहता हो, हमें उसको वोट देना चाहिए। आप क्या समझते हैं दफ़ा 370 टूटना, ये सारे भी चीज़ें हैं इन इलेक्शन में जो हैं वो असर करेंगी? देखिए बाकी नेशन वाइड तो नहीं पता, लेकिन हमारी स्टेट में खासकर जम्मू में ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एक हमारा ये चेंज आया कि जो कि इम्पॉसिबल था कि कोई ये अपने वाइल्डेस्ट थॉट में भी नहीं सोच सकता कि दफ़ा 370 हटेगा, लेकिन हटा। लेकिन हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो चाहती हूँ जैसे पूरा देश है हम भी देश के साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है, इसलिए दफ़ा 370 हटना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि हम वी आर वन, एक नेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो हम एक हैं और रूल रेगुलेशन सिस्टम पूरी कंट्री का एक जैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, वोट डाल दिया है आपने भी, क्या सोचकर वोट डाला, मुद्दे क्या हैं आप लोग? मुद्दे पीस प्रॉस्पेरिटी कंट्री के लिए, और तो बाकी तो गवर्नमेंट को पता ही है किस चीज़ की कहाँ क्या, किस स्टेट में क्या कमी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या लगता है जो पहले यहाँ सांसद हैं वो 10 सालों से सांसद है, आप खुश हैं उनके कामों से या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है, आज के ज़माने के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो भी है कंट्री के लिए, जैसे और कंट्रीज़ जिस उसमें दिशा में जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि हम भी और कंट्रीज़ की तरह इतने ही प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें। तो मुद्दे भी हैं और चीज़ें भी हैं जो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। Issues is main garbage clearance, and we stay just behind this. So car parking tumba ಇದೆ ರೀ. Car parking is a very big issue. We have been complaining from almost 4 to 5 years. Nothing has been solved, and we have been fighting with everybody. This is what is happening, and nobody is taking much of interest and clearing this problem. And what do you think that yeah, we have made a lot of requests for a change. They say no funds not available, or maybe after 10 years we are going to tar these roads and other things. So the issue is only lighting and main is garbage, and the next one is unauthorized parking in our layout, because we have ample space. Roads are wide, so people from the other side come over here and then do the parking. We have been trying to do this through our welfare society also, but still nobody is taken care of, because we want collaboration with the line departments. The local Lok Sabha elections is mainly national issues, so I am here voting for national cause than a local cause. Yeah. what are the issues that you think that are Nationally, see, if you see locally, I've been to BBMP meetings quite a few times. The then nodal officer said that this is the most expensive or the most funds collected in a BBMP nodal segment is this through taxes. And this should have been like, wow, we don't feel that. So if you're collecting so much of funds, we should have done wonders here. So I feel that if the money is spent wisely, maybe this colony should be the best in Bangalore for the amount of money collected. So I don't see that being reflected. I know for me only one thing, that I want my party to come. That's all. And you know who I'm telling. I don't see any change in every election. We are just coming religiously, voting for our leader and going. But whatever is there is the same. There's nothing different. सर, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ राष्ट्रहित का मुद्दा, देश हित का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और भारतवर्ष में एक मजबूत सरकार बने। पूरे संसार के 150 देशों की निगाहें इस लोकतंत्र के महापर्व पर लगी हुई हैं। सभी लोग देख रहे हैं इस बार क्या होगा। तो निश्चित रूप से हमारे मथुरा के लोग तो एक मजबूत सरकार के लिए मजबूत नेता के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं मथुरा में? काम तो हो ही रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, मोदी काम कर रहा है और धड़क्के से काम करता है, ऐसा ही आदमी चाहिए। क्या मुद्दे हैं, कतार में खड़े हैं, वोट देने जा रहे हैं? मेरा मुद्दा तो यही है कि बस तरक्की हो अपने भारत देश की, चाहे कोई भी आए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर मिश्रा। क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? मुद्दे तो है, देखो, जो जहाँ रहता है सबसे पहले क्षेत्रीय देखता है कि नोएडा का विकास हो, और नोएडा ऑलरेडी पहले से भी विकसित है और काफ़ी विकास हो रहा है हमारे मतलब योगी जी के शासन में।
और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छा जो है प्रभाव है। सर क्या नाम है आपका? कतार में खड़े हैं, वोट डालेंगे, क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके जहन में? हरिकिशन शर्मा। और वोट देना मतलब कतार में इसलिए खड़े हैं क्योंकि वोट देना तो अधिकार है अपना जो है, और दूसरा मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है जो है। तो विकास जहाँ पर होगा वहीं पे जो है मतलब वो। नोएडा में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी मतलब बढ़ी हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? चंद्रपाल शर्मा। स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, चौड़ा रंगनाथ जी। क्या लगता है मुद्दे हैं यहाँ बाकी और उस पर काम होना चाहिए? नहीं, काम अच्छे हो रहे हैं जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और अच्छे ही होंगे। अच्छा। हाँ, बस इसी बेस पे वोट दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शेष मणि। अच्छा, कतार में लगे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? दिमाग में क्या, वोट देना है। अच्छा। बाकी काम हो ही रहे हैं, सब सही काम हो रहे हैं। At an individual level, development has been happening since the past 10 years, and I hope it continues this in the same way, and I'm pretty satisfied with. Hi, what issues are you voting for? As far as I have seen from 2014, the defense sector has been improved. I just wanted to improve more with the other things here. So, what issues are you voting for today? Developments, infrastructure developments, and overall we have seen a progress in last 10 years, and we're looking forward. So, what issues are you voting for today? Development and infrastructure improvement, especially Bangalore. I think it requires a lot of improvement, which is not taken care by several governments. Sir, what issues are you voting for? For betterment of the country and for the economic wise. We want to get stronger. We've been stronger, now we have to go for a next level there. So I just think voting for the right people will get us to there. What issues are you voting for today? Infra development, economic issues and education. Those three, I mean. गाजियाबाद की बात करें तो लगातार 2 साल से बीजेपी जीत रही थी। इस बार क्या मुद्दे होंगे जिनको आप ध्यान में रख के वोट करने पहुंचे? जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा और अच्छा ही होगा। हम मोदी जी से पूर्णतः खुश हैं। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे गाजियाबाद? मुद्दे ट्रैफिक जाम, बाकी सब बढ़िया। जाम की समस्या चाहते हैं, हाईवेज बने। बिल्कुल। आपसे भी बात करना चाहेंगे, यंगस्टर्स हैं, क्या मुद्दे दिमाग में रख के आप वोट करने आए हैं? क्या कुछ कि एजुकेशन में इम्प्रूव होंगे। एजुकेशन में मूव हो। इस वक्त बीजेपी है, क्या लग रहा है जो सरकार मौजूदा है उसका काम कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा काम। अब लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और लोग भी मौजूद हैं, लगातार हम सबसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, आखिर मतदाता के मन में क्या है? सर, क्या कुछ मन में चल रहा है? वोट डालने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छा है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। और तो अपोजिशन में तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं यहाँ पे। डॉली शर्मा इस बार कैंडिडेट है। हाँ ठीक है, बाकी बीजेपी का ही ज़्यादा है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार के? नहीं, सब सही चल रहा है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो जाम रहता ही है, वो तो थोड़ा सा है। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में निकल के जो आ रहा है वो ट्रैफिक का मुद्दा है। ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी सरकार आएगी वो ट्रैफिक की जो मुद्दे हैं उनको सुलझाएगी। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे लगातार बात करेंगे। सर, क्या दिमाग में लेके आए हैं इस बार वोट करने आए? अपना वोटर कार्ड भी एक बार ऐसे झलक दिखा दीजिए। और क्या किन चीज़ों को दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो यही है, एक तो स्कूलों की फीस है बढ़ी हुई, इतनी प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस है, एक बड़ा मुद्दा है वो। ये एक बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम है, सफाई है। मैन जी, आप बताएंगे कि आज आपको यहाँ वोट डालने के लिए आए, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर के आए हैं? जो देश के हैं और देश के लिए जो सोच रहा है हम उनके साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। आप? मोदी जी। क्या मुद्दे हैं आपके लिए और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि हमारा देश अच्छी तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है, प्लस योगी और मोदी बेस्ट। आपका? योगी जी, 100% योगी ही आएंगे। और हमने आउट ऑफ स्टेशन जाना था, हम वो छोड़ के अपना क्या कहते हैं, हम मैरिज में जाना था, इलेक्शन की वजह से हम गए नहीं आज। मेरी मदद। आपका क्या नाम है? सुनीता सचदेवा। आप घर छोड़ करके, सुबह का जलपान छोड़ करके वोट करने के लिए आई हैं, तमाम लोगों को क्या? हाँ जी, भाई यही है, मैंने भी बाहर जाना था
मैंने कहा पहले मैं मोदी जी को वोट दे के बाहर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। और जो घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बस वो भी आएंगे वो भी वोट डालने आएंगे, देंगे हम योगी जी को ही। चलिए आप बताएंगे, आप यहाँ वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर के आप वोट डालने जो विकास अभी तक चल रहा है, अगर मोदी जी दोबारा आते तो विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी, इसीलिए हम उनको सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं। बाकी सारे परिवार के सदस्य भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप लोग मन में, आप युवा हैं, मन में क्या चल रहा है कि राहुल की गारंटी या मोदी की गारंटी? राहुल जी की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन दोनों भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है, जो सोशल मीडिया बताता है। तो राहुल जी की गारंटी पे भरोसा कैसे करेगा देश, ये बताइए। और क्या क्या इश्यूज को लेकर के आप यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं? इश्यूज जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जागृति तो आए, मेन तो जागृति है। जागृति आएगी तो देश आगे बढ़ेगा। Issues are you voting for today? I'm voting for the development at the grassroots level of India, first of all. I'm also an active foreign policy follower, so I'm voting for India's strong foreign policy today. And I'm voting for the voice of youth and development in technology. I'm a semiconductor enthusiast. I'm not interested to know my assets and all. Yeah, government should not get to know all the assets that are available and all. Redistribution is left to the government, right? So yeah, people have to be sure, like when they are voting, they have to make sure that they know to which party they are voting, and then if this particular itinerary that has been provided to the people, they should be aware as whether it is a plus or minus to the country. Thank you. Thank you. The Congress party has said that there should be redistribution of wealth in this country. Would you be okay with the government knowing about your wealth and assets? I don't think I'll be very comfortable sharing my personal information to the government whatsoever, but I'm sure that they will know most of it, but making it public is something which I'll not be okay with. Thank you. Do you think that there should be Muslim quotas in the country? Ma'am, for backward classes it should be there, ma'am. Like in Muslims also, there are some Pasmanda Muslims where they are literally they are unable to have, they don't have any certificates, they don't have anything. So for them it should be there. Do you think you would be okay with the government knowing about your wealth and assets? I am surely not. I don't want to leak out my assets because it is my own hard-earned money. Whatever is there, whatever is the cutting, whatever the tax need to be paid to the government, I will pay those things. I don't want to disclose, I don't want to interfere into others' matters and know what is their assets because it's none of my business at the end of the day. Thank you. I understand the Congress party has said that wealth should be redistributed in this country, taken from the rich and given to the poor. Would you be comfortable with the government knowing about your wealth and assets? I would not be comfortable with that because it's our hard-earned money, right? So, yeah, no, not right. It will be not right to let others know our wealth and all. But sort of, I will disagree with that. That's it. Thank you. Performance and stable government is the option for me. National security is important, and young generation to be looked after. A national issue because at the end of the day we need to vote for someone that we think can rule our country in a proper way and not dominate anything. National security is one, and better governance. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.